Am I audible? Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you for the confirmation. So we will continue with a small recap. As we have started with Power BI, we did understood not on the last session, but before that on Monday that how to install. I hope there would not be any problem for anyone for installing this Power BI tool. If there is, make sure I already have mentioned that you can post that issue in the group and then that will be resolved. But anyhow, I didn't get. So what I think is that there won't be any issue regarding the installation and downloading of that particular tool. Now, with that said, we have started also um carrying out, or say we have started with importing a data from web. That is the first example that we have got through to import a data. To import data, we have started with Bluetooth web. mode. Connected. Okay. So we have started with importing one of a web data which is available in a website that is specifically to be said IMDb. That is IMDb movies details what we have exported. And then where we have understand that if the data is available in, let's say, in semi-structured or unstructured format, Power BI specifically, there are components which are responsible for specific tasks which are been provided. We'll be discussing about that also. Likewise, we are having Power Query, which is specifically responsible for such task for importing the data, and importing behavior or transformation. For transformation, which is responsible for this. Now, this Power Query is also known as one of a ETL tool. Probably most of you people might not have heard, or let's say they might not be of introduced with this particular uh, um, words. So this is also called as ETL tool. Okay, extract. This ETL stands for extract, transform, and load. Okay, that is called ETL tool. There are lots of other ETL tools. Okay, Excel is also one of the ETL tool to be specified like this. Excel is also one of the ETL tools. There are others also, Power BI, Tableau, those are specifically used. Now, how ETL works is that even in MySQL, okay. Now, basically, you might think कि ETL tool है क्या? So, ETL means any process where you first extract the data, then you transform the data, and then you load. Load here resembles for visualization for conclusion for your decision making purpose. That is for load. Okay, that is called load method. Now here there is also other method which is called ELT. ELT. Here you extract the data, you load the data, and then you transform the data. So difference over here is you extract data in the same, but the second step it gets exchanged. Let's say it gets transferred with one another like this. Okay, it gets exchanged with this. So here ELT and ETL, those are two different methods. Now here Power BI works on this ETL process where you extract the data first. First you do this extraction process, then you transform the data, and then you load the data. Here in SQL also, it simply means that we are importing data from one source. We are importing data from one source, then we are doing data pre-processing or transform, what is exactly told over there. Data pre-processing step that has been applied. Once the data is clean, and then we are loading. Loading means specifically for visualization and for conclusion purpose. That is for used over here as a load. Okay. Here you extract the data, you load the data, and then you transform the data. Okay. So here is a different approach. Both of them are available. Okay. So if anybody asks you, have you ever worked on any ETL tool? Yes, that is one of a Power BI tool, and it is having Power Query. Now, it is not necessary that it should be or it is only available in Power BI because it is available in Excel also. So you can use in Excel help also in Power BI also. So both of them are having this component.
So Power Query is one of a tool which is called as ETL tool. Also, any process where you have used these steps, extract, transform, and load. Okay, extract, transform, and load. If you have followed any of this process, you have used that tool as a ETL process only. Okay, then it can be anything. It can be anyone. You can use Python also. Python is also one of a popular tool. Python. क्या spelling हो गया? Python. Okay. सही तो था. Okay. Anyhow, Python जो tool है, tool नहीं कहूंगा, basically वो language है. Python language is also one of a let's say हाँ popular tool. To be frankly said, one of a popular tool. उसमें क्या है? Pandas, then NumPy, then Matplotlib. ये क्या करते हैं? आप डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो, आप डेटा के साथ में डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हो, फिर आप विजुअलाइज करते हो. सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ अ टूल विच इज यूज फॉर दैट. सो मेक श्योर कि आपको कोई पूछता है अगर क्या क्या आपने कोई ईटीएल टूल यूज किया है, हाँ किया है, क्यों नहीं किया है, कौन सा किया है, पावर बीआई किया है, एक्सेल किया है, पाइथन किया है, वी हैव यूज्ड देम. हाँ उसके अलावा कुछ और अवेलेबल है तो नेट पे कुछ अवेलेबल होंगे कुछ और नाम वगैरह, तो उनको भी जरूर आप यूज कर लीजिएगा. दैट इज ऑल्सो ओके. ओके. So means the tool used for visualization it called ETL, right? For The tools which are used for visualizations, it is called ETL. no, what I said, ETL is extract first, then transform, and then load. है ना? Now, when we say visualization, it comes at this part, load. It is not necessary ना कि आपको transform करना ही पड़ेगा. Okay? And it is also not necessary कि आपको data extract ही करना पड़े. हो सकता है कि आपको कोई visualization करके दे दे. So only visualization, which is load part, is not concerned with that. Any data which is going through these stages, extract, then transform, and then load, then we will call it as a ETL process. Okay? Okay. तो जैसे हमने भी डेटा लिया यहाँ पे IMDb का, अगेन दिस इज वन ऑफ अ डेटा सेट विच इज बीन टेकन फ्रॉम वेब विद हेल्प ऑफ URL with the web option which has been available. ओके सो ये डेटा हमारे पास में आया. अब आपने देखा है कि एक्सट्रैक्ट तो हमें पता चल गया. नाउ एक्सट्रैक्ट पार्ट इज कंप्लीट. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत सारे एरर्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है यहाँ पे जो हमें क्लियर आउट करने, जिसे हमें रेक्टिफाई करना है. ओके तो पहले हम क्या करेंगे ना, इस कॉलम को देखेंगे, चेक करते हैं कि ये जो कॉलम मिलेगा, इस कॉलम का नाम क्या है. इस पे मैं सिलेक्ट करता हूँ कॉलम नंबर 1 सिलेक्ट करता हूँ. देखो यहाँ पे ऊपर में हेड है, यहाँ पे देखो ये जो टूल है ना कॉलम टूल्स, ये नॉर्मली आता नहीं. देखो मैं बाहर क्लिक करता हूँ यहाँ पे without selecting any of option over here, or columns, these are basically columns. Without selecting any columns, you will see that there is no option over here, column tool etc. ये जो extra options है ना आपके पास में, table tools, column tools, ये वहाँ पे नहीं होता है. ये तभी अपीयर होता है जब आप किसी कॉलम को सिलेक्ट करते हो for editing part purpose like that, then only it will be there. Okay, so you can choose any of that particular column and then you will have that option. Till that it will not be available there. नाउ यू हैव दैट मींस आप क्या कर सकते हो, इस कॉलम को सिलेक्ट करके आप देख सकते हो ऊपर में नाम चेंज करना है. हाँ बोलिए. सर इसमें जैसे मल्टीपल टेबल से अगर डेटा लेना हो तो क्या जॉइंट्स परफॉर्म कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ना. देखो ये मॉडलिंग में आएंगे हम वहाँ पे भी, हमें एक डेटा लेना है सैंपल सुपर जिसमें कि 3 शीट्स है, 3 टेबल जैसे बनेंगे वो, तो उसमें भी हमको रिलेशनशिप बना के ही करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज उसके अलावा पॉसिबल नहीं होगा. ओके देखेंगे वो भी देंगे. एंड फॉर योर आंसर. तो जैसे मैं कॉलम पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन नाम आता है. ओके कॉलम नेम मुझे चेंज करना. अब यहाँ से कॉलम नेम चेंज करना ठीक है, आप एग्जैक्टली अगर आपको पता है कि ये कॉलम किसे रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं कर दूं यहाँ पे. बट प्रॉब्लम क्या होता है, मैं उसके अंदर ये नहीं देख पाता ना कि ये एक्चुअली किस के रिलेटेड है, ये इसके अंदर में क्या है जो मैं नाम दूं उसको. इजंट इट देयर शुड बी सम रेफरेंस फॉर मी टू गिव दैट नेम, इजंट इट? अदरवाइज इट वुड बी अ बिट डिफिकल्ट, और लेट्स से इट वुड नॉट बी एन कन्वीनियंट फॉर एनीवन हु इज रीडिंग दिस. So for that, instead of looking over report view, I'll jump towards next table view. Hello. हाँ बोलो. हाँ. Okay. कौन से ग्रुप कौन से ग्रुप की बात? सर अभी चालू है ना आपका बैच? में. हाँ जी मई का.
ओके, क्या हुआ उसमें आपको, मतलब निकाला है या निकल गए, क्या हुआ क्या? किया तो मिल ही नहीं रहा मुझे, और मैंने सर्च किया वो भी नहीं मिला। अली सागर को पूछ रहा, फिर मैंने सर्च किया फिर भी नहीं मिला, तो मुझे अब आपको ही कांटेक्ट करना पड़ा। ठीक है, मेरे को हाय भेजो तो मैं चेक करता हूँ। ठीक चलेगा, उतना कर दीजिए। चेक करता हूँ मैं, फिर बताता हूँ। ठीक चलेगा सर। या तो कॉलम नेम यहाँ पे है, बट अगेन इनकन्वीनियंस ये हमारे, हम क्या करेंगे उसे थोड़ा सा उसको एक स्टेप आगे लेके जाएंगे और हम उसमें एक रेफरेंस फाइंड आउट करेंगे। सो मैं रिपोर्ट व्यू से जंप करके या फिर वहां से निकल के आता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन जो है अपना टेबल व्यू। ओके, अब यहाँ पे देखो अगेन ये टेबल है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, सेम ऑप्शंस अवेलेबल है, ऐसे नहीं कि वो निकल गया है ना, आई हैव दैट सेम ऑप्शन आल्सो, बट नाउ आई हैव रेफरेंस आल्सो। Here I can see that okay, the first column is referred for titles, movie names, and serial number, but those are both combined. Then we have column name like this. These are review ratings basically, and these are how many people have viewed this. Then on a year basis, duration, rate, and so on so forth. हम क्या करेंगे, उसे rename करते हैं. So I'll first rename this as a title. है ना, title कर देते हैं इसे. Okay, Sagar, any query? Sagar, any query? Hello, Sagar, any query? ओके, सो टाइटल है, टाइटल में क्या हमने यहाँ पे रीनेम कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं। अगेन जरूरी नहीं कि आपको हर बार यहाँ से सेलेक्ट करना है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपको यहाँ करना है तो यहाँ से भी वो ऑप्शन आ जाएंगे। ओके, सो इफ आई क्लिक ओवर हियर आउटसाइड दिस पैरामीटर, ओके, जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ आता हूँ, है ना, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है अभी, है ना, आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो यहाँ पे, तो आपको कोई भी कॉलम सेलेक्ट करके देखो, ये कॉलम वगैरह सेलेक्ट किया, देखो ऊपर ऑप्शन होता है कॉलम टूल्स। ओके, ये आपके यहाँ पे अपीयर होते हैं, तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, नाउ अब दूसरे कॉलम पे डबल क्लिक करते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग ओवर देयर आई कैन यूज दिस ऑप्शन ओवर हियर आल्सो। डबल क्लिक करना, एडिटिंग जैसे हम करते हैं किसी भी सेल के अंदर में, एक्सेल में, वही आपका ऑप्शन अवेलेबल है। सो दीज आर रेटिंग्स, रेटिंग्स कर देते हैं और छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं, ये कितने, ये व्यूज है, isn't it? These are views, कितने लोगों ने देखा है ये वो बता रहा है। देन वी हैव, ये ईयर है, इट्स नॉट डेट फॉर्मेट बट इट इज ईयर। ओके, सो उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। कॉलम नंबर क्या है, ये भी कॉलम अपना ये ड्यूरेशन का है, हाउ मच लॉन्ग दैट मूवी इज, दैट इज ड्यूरेशन। देन ये रेट, क्या इसमें कोई भी वेरिएंस है दूसरा, नहीं है। ओके, सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो। एंड हियर वी हैव कैटेगरी, जॉनरा कहते हैं जी। जॉनरा करते हैं या फिर इसको कैटेगरी भी कह सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं, कैटेगरी भी कह सकते हैं, जॉनरा है कैटेगरी दोनों कह सकते हैं, एनीवे नो इशू। तो इस तरह के अपने पास में अलग अलग जॉनरा है, इसमें ब्लैंक भी कुछ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहला स्टेप जो है ये हमने कर दिया। अच्छा, अब ये जो कॉलम नेम है मेरे पास में, रेट और कॉलम नेम, क्या इसका कोई यूज होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज वी कैन सी दैट देयर इज नो वेरिएंस, देयर इज नो डिफरेंट डिटेल्स ओवर हियर, इजंट इट? सो यहाँ पे कोई वेरिएंस ही नहीं है, तो मैं कॉलम को रख के क्या करूं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी। अगेन गोज फॉर दिस सेम आल्सो, मार्क एज वॉच करके सेम ही कॉलम के लिए भी वही रेफरेंस होता है। तो इट्स बेटर कि मैं इसे क्या कर दूं, डिलीट कर दूं, बिकॉज एनी हाउ आई विल नॉट बी यूजिंग दिस। So it's always better to delete unwanted column or let's say columns which are not necessary for our analysis. It is better we remove it. Okay, once हो गया यहाँ पे, ये प्रोसेस अपना कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, देखो अभी भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ इश्यूज हमें आइडेंटिफाई हो रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो कि ये जो नाम है मूवी का नाम, सीरियल नंबर ऐसे कुछ है, और फिर बाद में जो भी इंफॉर्मेशन लिखा है, आई डोंट वांट दिस इन सेम cell, isn't it? This number has a different data type, this text has a different data type, both of them are different entities. I need to separate it, isn't it? So we'll separate it also. Then at this column where views are been there, it is 3 million, isn't it? And with parenthesis, it is not required for us. We need to remove that also. Although this year column, it is year data, but it is not of exact data type which a particular
data, let's say any data type consisting of. So we'll leave it as it is. Then duration ठीक है. अब कैटेगरी में भी कुछ हमारे डिटेल्स हमने देखे थे, वहां पे ब्लैंक वैल्यूज है, हमें उसे भी एलिमिनेट करने पड़ेंगे. लाइक दिस देयर आर सम एनोमली, देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन आवर डेटा, इजंट इट? वी नीड टू रेक्टिफाई दैट. सो लेट्स सी हाउ वी कैन रेक्टिफाई दैट. यहाँ पे तो ब्लैंक का कुछ दिख नहीं रहा है, रेटिंग में भी नहीं है ब्लैंक, सिर्फ एक कॉलम है जहाँ पे ब्लैंक है. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट हमने उसे अभी क्लियर करता है. मैं इसे सेव कर देता हूँ. ओके, नाउ सेव करने के बाद में आप जो बाकी का इंफॉर्मेशन, जैसे ये भी हमें चेंजेस करना है. इफ आई राइट क्लिक ऑन दिस, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, मैं कर नहीं सकता. अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो ठीक है, कॉलम तो ठीक है, पर नीचे कहीं भी डेटा, ये किसी भी डेटा ना, किसी भी रिकॉर्ड में मैं जाके ऐसे मेरे मन की हिसाब से चेंज नहीं कर सकता. मैं मैट्रिक्स को कुछ और नाम दे दूं, रीनेम कर दूं, ऐसे को देखा पे ऑप्शन भी नहीं है. इफ आई क्लिक ऑन ये यहाँ पे रीनेम होता है ऊपर. ओके, इस कोई भी सेल के अंदर में नहीं होता है. इट इज ऑलवेज रीनेम ओवर हियर, इट विल नेवर गेट रीनेम एनीथिंग इनसाइड दिस, नहीं होता है वो. तो ऐसे केस में हम कैसे इसको एडिट करें? फॉर दैट अब हम क्या करेंगे, इसके लिए होम पेज पे आइए. कहां पे आइए? होम टैब पे, नॉट पेज पे, होम टैब पे. वहां पे देखो आपको ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म. आपको याद होगा जब हमने डेटा इंपोर्ट किया था, वहां पे दो ऑप्शन थे, ऐसे दो ऑप्शन आए थे. एक था लोड और एक था ट्रांसफॉर्म. हमने क्या किया था, इसको चूज किया था फर्स्ट. अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर चूजिंग दिस ट्रांसफॉर्म. अभी हम क्या कर रहे हैं, लोड करने के बाद में शिफ्ट हो रहे ट्रांसफॉर्म पे. सो दिखाने का मेरा यहाँ पे ये मेथड ये है, ये बताना है आपको. दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि भाई लोड करने के बाद में भी, आफ्टर डूइंग लोड ऑल्सो वी कैन ट्रांसफॉर्म. ऐसे नहीं कि if you will not do transformation at the earlier stage, then there will not be any option, or there will not be any method to transform the data. नहीं, ऐसे कुछ नहीं है. Still you have option there also. If you first load, you can have that option later also. So for that हम क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे होम टैब में, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके ऑप्शन है, इस पे हम कर देंगे क्लिक. अगेन ड्रॉप डाउन करोगे तो डेटा सोर्स सेटिंग और ट्रांसफॉर्म में डिफरेंस क्या है देखो. अगेन दिस कम्स अंडर सेम कैटेगरी, इजंट इट? एक ही ट्रांसफॉर्म डेटा कैटेगरी में आता है. तो है क्या दोनों? आई क्लिक फर्स्ट ऑन डेटा सोर्स सेटिंग. देखो ये क्या बताता है, ये बताता है डेटा सोर्स सेटिंग के हिसाब से द डेटा सोर्स इज करंट फाइल जो फाइल में चल रहा है वो कहाँ पे है. दिस इज फ्रॉम दिस वेबसाइट. ये वेबसाइट का डिटेल बता रहा है. अगर आपके कुछ सिस्टम के बारे में होगा तो वहां पर आपको बताएगा कि हाँ डी ड्राइव में यहाँ पे ऐसे पर्टिकुलर जगह पे आपका फाइल अवेलेबल है, मतलब पाथ बताएगा. ओके, वो बताता है. अगर आपको चेंज करना रहा, कुछ एडिट करना रहा ना, तो आप कर सकते हो. ओके, एडिट परमिशन, क्लियर परमिशन, दैट कैन बी चेंज ओवर हियर. सो वो सेटिंग्स के लिए यहाँ पे यूज होता है. राइट नाउ इट्स ओके, वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग, सो इसको एज इट इज रखेंगे. ट्रांसफॉर्म में नीचे के बजाय ऊपर फर्स्ट वाला ऑप्शन ट्रांसफॉर्म डेटा पे हम क्लिक करेंगे. ये हुआ क्या? नाउ फ्रॉम पावर बीआई डेस्कटॉप From Power BI Desktop, we have now moved to Power BI Query component. ये component है, ये component है. ओके, ये क्या है? Power BI Query से अभी हम Power BI Desktop से हम कहाँ पे गए? अभी Power BI Query में हम शिफ्ट हुए. अच्छा, ये बोलिए क्या हो रहा है ये? Let me tell you. As I have already mentioned you that there are different components. Since Power BI is SaaS, Software as a Service. ये क्या करता है सॉफ्टवेयर? This software is comprised of different elements, different components, different duties, different let's say systems or options. Okay, तो उस options को उन्होंने क्या है as a component consider किया है. जैसे आप जब डेटा इंपोर्ट करोगे तो पावर क्वेरी रिस्पॉन्सिबल रहेगा. जब आप मैप क्रिएट करोगे, विजुअल्स क्रिएट करोगे, विजुअल्स बेसिकली, तो पावर बीआई पिवोट, तो पावर पिवोट ये रहेगा, पावर व्यू रिस्पॉन्सिबल रहेगा. जब आप मैप यूज करोगे तो पावर मैप रिस्पॉन्सिबल रहेगा. जब आप 2-3 टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाओगे तो पावर पिवोट रिस्पॉन्सिबल रहेगा. वैसे जब आप क्वेश्चन एंड आंसर करोगे तो पावर Q&A
क्वेश्चन एंड आंसर ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ऐसे ना अलग अलग कंपोनेंट है जिसके स्पेसिफिक उन्होंने रोल से डिफाइन कर रखे विद इन कंपोनेंट्स। कौन से हैं, लेट मी टेल यू दैट आल्सो फर्स्ट, देन वी विल गेट बैक ओवर हियर। सो ये वाला नहीं है, probably this one भी नहीं है। ओके ये देखो ये कंपोनेंट्स उसके, दीज आर द कंपोनेंट्स। पावर बीआई डेस्कटॉप जो हम यूज कर रहे हैं लोकल सिस्टम में वो है अपना एक कंपोनेंट। ऐसे कितने देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके 8 है, 8 से ज्यादा भी है, ऐसे नहीं कि इतना ही है, बट एटलीस्ट इतने ये वाले इतने जो कंपोनेंट आपको पता होना ही चाहिए। ओके यस बाय हार्ट करना ही चाहिए इतना तो भी एटलीस्ट। ओके बाकी का तो चलो आगे पीछे होता रहेगा, दैट वुड बी एक्सेप्टेबल, बट इतने कंपोनेंट आपको याद रखने ही होंगे। क्यों मैं आपको इसका बताता हूँ, बिकॉज परफॉर्मेंस जो है ना पावर बीआई का इस पे डिपेंड होता है, बिकॉज दोज आर कंपोनेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट डिफरेंट लेट्स से ऑप्शंस और स्टेप्स दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई। जैसे पावर बीआई डेस्कटॉप जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है, क्या है ये, दिस वन ऑफ अ कंपोनेंट। ओके पावर बीआई डेस्कटॉप। फिर पावर बीआई सर्विस ये क्या है, अब आप देखोगे, देखो पावर बीआई डेस्कटॉप क्या है, दिस इज फॉर वन पर्सन, दिस इज इन योर सिस्टम, लोकल ड्राइव में है। यहाँ पे कितने आदमी काम कर सकते हैं एक बार में, एक ही बंदा काम कर सकता है, ऑफलाइन है ना, एक ही बंदा एक टाइम में कर सकता है। यही अगर ऑर्गेनाइजेशन होता, लेट्स से कि आपके पास में 4-5 बंदे हैं जो एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट रोल कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं, तो क्या एक पीसी पे 4 लोग काम नहीं कर पाएंगे? तो ऐसे में क्या है, ऑनलाइन अपने अपने सिस्टम में करो, बट यू विल बी वर्किंग ऑनलाइन। तो ऑनलाइन क्या होता है, पावर बीआई सर्विस में काम होता है, जहां पे सेम चीज जो आप पावर बीआई डेस्कटॉप में वही करोगे, बट इट विल बी ऑन ऑनलाइन बेस, ताकि आपका जो भी अपडेट होगा, जो भी चीजें आपकी अपडेट हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं, वो सबको रिफ्लेक्ट होता है। ओके उसके बाद में अगर आपको आपके यूजर को, क्लाइंट को, अब देखो आपने कंक्लूजन किया, आपने डिसीजन लिया, आपने सिस्टम बनाया, आपने उसको आंसर दे दिया, रिपोर्ट जनरेट, डैशबोर्ड सब क्रिएट किया। अब अगर क्लाइंट को हर समय लैपटॉप लेके घूमना पड़ेगा, या फिर हर समय अगर लैपटॉप डिवाइस जो है आपका वो कैरी करना पड़ेगा हर जगह, तो वो इतना कन्वीनियंट नहीं है। तो उसके लिए इतना मतलब क्यों करना सब, अगर मुझे कंक्लूड ही करना है ओनली बाय व्यूइंग, क्योंकि क्लाइंट का काम क्या है, आपने जो डिटेल भेजा डैशबोर्ड बनाया, हाँ डैशबोर्ड में चेक करूंगा, हाँ करना है नहीं करना है, इस स्टेप के ऊपर मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मेरे लिए प्रॉफिटेबल है नहीं है, ये सब चीजें कंक्लूड करना है ना। तो ये कंक्लूड करने के लिए जो भी आपने डैशबोर्ड बनाया है, जरूरी नहीं कि हर बार लैपटॉप में ही दिखा हुआ आपने। if the person is traveling from one place to another, if a person is not carrying laptop at that moment, or let's say if he's been stuck somewhere and been let's say asked with that report मैनेजर वगैरह पे, तो क्या करोगे? तो ऐसे केस में यस विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई मोबाइल आप उन्हें डायरेक्टली रिपोर्ट भी शेयर कर सकते हो। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है, पावर बीआई मोबाइल आपको इंटरैक्शन नहीं करने देता। अब इंटरैक्शन क्या है बताता हूं, सी अगर ये आपका चार्ट है, ये अगर आपका चार्ट है, इसमें क्या है, लेट्स से कि ये फीमेल का डेटा है और ये मेल का डेटा है। ओके ये है मेल का डेटा और ये फीमेल का डेटा। आप देख सकते हो कि फीमेल का यहाँ पे जो भी काउंट वैल्यू जो भी कुछ आया यहाँ पे ज्यादा आया है ऑन एक्स एक्सिस एंड एन वाई एक्सिस। ओके तो एक्स एक्सिस में जो भी वैल्यू है, ओके वो जो कैटेगरी है, एफ करना है फीमेल, ओके फीमेल का, तो ये जो फीमेल का वैल्यू है ये ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल, देख सकते हो ना, क्योंकि देखो वाई एक्सिस से जो भी वैल्यू आपने तो बता रखा है, सेल्स है बोलो या जो कोई भी इसमें वैल्यू दे रखी है, इट सिंपली सेज कि हाँ फीमेल का जो भी वैल्यू है वो ज्यादा है ना। मुझे अगर फिल्टर करना है डेटा को, फिल्टर कैसे करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ जितने भी मेरे विजुअल्स है उन सब विजुअल्स में मुझे क्या करना है, फीमेल का इंफॉर्मेशन, सिर्फ फीमेल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुझे जानने हैं कि भाई फीमेल का परफॉर्मेंस कैसा है। तो मैं क्या करूंगा, फिल्टर लगाऊंगा, और फिल्टर लगाऊंगा तो क्या होगा, जब मैं सिर्फ फीमेल का लगाऊंगा तो ऑब्वियसली
मेरे पास में मेरे सिस्टम में क्या होना चाहिए, ये फिल्टर लगाने के बाद ये डिटेल्स नहीं आनी चाहिए, ये गायब होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फीमेल का डेटा हाईलाइट होना चाहिए। बट ये कब होता है, ये पॉसिबल तभी होता है जब आप पावर बीआई डेस्कटॉप और पावर बीआई सर्विस में यूज कर रहे होंगे। अगर आप ये पावर बीआई मोबाइल में किसी को दे दोगे सामने वाले को, वो इंटरैक्टिव, इसको कहते हैं इंटरैक्टिव। ओके, तो वो इंटरैक्टिव ऑप्शन को यूज नहीं कर पाएगा। ही ओनली हैज टू सी एंड डिसाइड व्हाट एवर इज पॉसिबल, इतना वो लिमिटेशन है उसकी। फिर है पावर बीआई गेटवे। एक्चुअली देखा जाए तो पावर बीआई सर्विस और गेटवे एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, क्योंकि जब आप ऑनलाइन काम करते हो ना, तो ऑनलाइन जब काम करते हो तो आपको कभी कभी डेटा को रिफ्रेश करना होता है, किसी को शेयर करना होता है। आपको आपके डेटा को जो आपके सिस्टम में है, लोकल सिस्टम में है, उसको अगर आपको ऑनलाइन करना है तो ऐसे केसेस में गेटवे हेल्प करता है। ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को उनके डेटाबेस में से अगर आपके वेब सर्विस को, क्योंकि ऑनलाइन काम करना है ना, तो ऑनलाइन अगर डेटा को शेयर करना है तो कहाँ से करोगे, देन देयर शुड बी अ गेटवे। गेटवे क्या करता है, देखो गेटवे इज लेट्स से helps you to connect Power BI service which is online to your organization data। आप ऑर्गेनाइजेशन का डेटा जो अवेलेबल है वो आप आपके पावर बीआई सर्विस जो है उससे कनेक्ट करते हो, या फिर कनेक्ट कर सकते हो वंस इट इज बीन देयर। और आप जितने भी ऑप्शंस है, आप एनालिसिस करना है, जो कुछ भी करना है वो आप अचीव कर सकते हो। ओके, दैट इज पावर बीआई गेटवे। देन वी हैव पावर बीआई क्वेरी जो हम अभी कर रहे हैं, which is responsible for data shaping and transformation। पावर पिवोट डेटा मॉडलिंग एंड रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट। ओके, जब मल्टीपल आएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। पावर मैप गूगल ज्योग्राफिकल डेटा विजुअलाइजेशन, पावर मैप। ओके, देन पावर क्यूएनए नेचुरल लैंग्वेज डेटा एक्सप्लोरेशन फीचर। क्लियर है फीचर्स? किसी को कोई क्वेरी? कोई क्वेरी किसी को कुछ? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, हेलो सर। बोलो ना। पावर क्यूएनए जो है, जो नेचुरल लैंग्वेज के क्वेरी जो है, वो हम्म। हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि पावर बीआई की तरफ से हम लोग को मिला होता है? नहीं, पावर बीआई के उसमें कंपोनेंट अवेलेबल है ना, पावर बीआई के तो जो जैसे उसमें जो कंपोनेंट है ना। क्वेश्चन, हाँ, तो उसमें पावर जो बीआई के अंदर जो, क्वेश्चंस हैं, जैसे हम लोग को हाँ। चार्ट वगैरह कुछ भी बनाया और उसमें उसको अच्छा ऐड करते हैं, हम्म। तो वो मतलब हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन सामने वाला पूछ सकता है, या फिर वो प्री डिफाइंड रहते हैं? हम्म, कुछ कुछ फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन होता है, वो उसमें हो जाता है। और अगर आपको करना है तो आप भी वहां पे लिख सकते हो, यू कैन टाइप और यू कैन प्रोवाइड देयर आल्सो। ओके ओके सर। ओके, जैसे लास्ट टाइम हमने अच्छा डिस्कस किया था,
सागर आपका माइक ओपन है, कुछ कहना चाहते हो कि आपका आवाज नहीं आ रहा है, बट आपके पीछे ठीक है। हाँ, तो लास्ट टाइम जैसे मैंने कहा था आपको कहा था कि हम डैशबोर्ड ही बनाते हैं ना बेसिकली पावर बीआई में, और जो भी पावर बीआई टूल है स्पेसिफिकली तो डैशबोर्ड के लिए ही ज्यादा फेमस है। ओके, नाउ व्हाट डैशबोर्ड इज, सी डैशबोर्ड हॅलो इज, हाँ बोलिए। सर, सागर म्हणतोय की एक्सप्लेन PBI गेटवे एक्सप्लेन करा असं म्हणतोय तो चॅटमध्ये. ठीक है, चल। तो डैशबोर्ड जो है, ये डैशबोर्ड ओवर हियर, दिस डैशबोर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइल्स, डिफरेंट टाइल्स मैंने जैसे कहा था लास्ट टाइम, इफ यू लुक ओवर हियर इन अ चार्ट देयर इज वन विजुअल, ये हर एक इंडिविजुअल विजुअल है, ये सब एक साथ आए हैं ना एक पेज पे। इफ यू लुक ओवर हियर, दिस इज वन पेज, दिस इज वन पेज, and in this one page you have different visuals that has been put together. Okay, so if you are putting together multiple tiles in one page, and with that page, when you will decide something, when you will take a decision, when you will take a decision while telling story, okay, while concluding or while telling story, that particular page is called dashboard. This dashboard is consist of different reports, and report means in reports you have lots of you might have done lots of analysis. Okay, for example पकड़ लो सेल्स का मैंने रिपोर्ट्स बनाया है, सेल्स रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट्स में क्या होगा, बहुत सारे अलग अलग मेरे वहां पे एनालिसिस होंगे, कहीं पे रीजन वाइज एनालिसिस होगा, कहीं पे कस्टमर वाइज एनालिसिस होगा, कहीं पे कैटेगरी वाइज होगा, सब कैटेगरी वाइज एंड सो फोर्थ, बहुत एनालिसिस होगा। अल्टीमेटली मैं एक कंक्लूजन पे आऊंगा। सो जो भी एक या दो चार्ट होते हैं रिपोर्ट के अंदर में, जो मेन होते हैं, जो कंक्लूड करने के लिए हेल्प करते हैं, दोस चार्ट्स विल बी टेकन ओवर दिस पेज। वो क्या होता है, एक ऐसे बड़ी पेज पे यहाँ पे लेके आते हो, यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये एक पेज है, यहाँ पे ये पेज है, ऐसे दो चीजें होंगी, दो बड़े चार्ट्स विजुअल्स होंगे, या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। विद दैट मल्टीपल विजुअल्स आप एक पेज को स्टोरी टेलिंग के साथ में कंक्लूड करने के लिए जो यूज करते हो उसे कहते हैं डैशबोर्ड। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तो सर डैशबोर्ड, हाँ बोलो बोलो। सर वापस आप रिपीट कर सकते हो अभी जो आप बोले। एक पेज में जब आप ना रिपोर्ट्स, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि रिपोर्ट जब हम बनाते हैं, रिपोर्ट जैसे सेल्स रिपोर्ट होगा, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो मुझे सेल्स रिपोर्ट निकालना है, तो सेल्स रिपोर्ट कैसे हो सकता है रीजन वाइज, हो सकता है वो कैटेगरी वाइज, वो हो सकता है स्टेट वाइज, वो हो सकता है कस्टमर वाइज, वो हो सकता है अगेन डिफरेंट एक्स वाई जेड जो भी रीजन है। तो एनालिसिस ऐसे डिफरेंट सेल्स के होंगे। those all analysis or all the details that you have gathered, that is called report. अब बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट जो भी आपने एनालिसिस किया है, कुछ ऐसे दो तीन कुछ ऐसे आपके विजुअल्स होंगे, एक दो दो तीन ऐसे कुछ विजुअल्स होंगे, गिने चुने विजुअल्स, जो अल्टीमेटली कंक्लूड करते होंगे कि हाँ भाई जो भी आपने यहाँ पे एनालिसिस किया है, जो रिपोर्ट आपने बनाया है, दैट कंक्लूड्स कि हाँ भाई सेल्स का ट्रेंड कम हो रहा है, सेल्स का वैल्यू ज्यादा हो रहा है, या फिर सेल्स का कुछ टाइम से जो भी रीजन है उसके पीछे वो यस वहां पे क्लियरिफाई होता है। ऐसा कुछ ना कुछ दो तीन आपके विजुअल्स में क्लियर होते होंगे। तो वो जो विजुअल्स है वो हम क्या करते हैं, वो हम उठाते हैं रिपोर्ट से मेन विजुअल्स, एंड वी पुट इट ऑन अवर डैशबोर्ड। हम उसे क्या करते हैं, डैशबोर्ड के लिए यूज करते हैं। व्हाई? बिकॉज इन डैशबोर्ड यू आर गोइंग टू कंक्लूड। आप क्या करते हो डैशबोर्ड में, कंक्लूड करते हो, वहां पे एनालिसिस नहीं कर रहे होते हो, वहां पे आप क्या कर रहे हो, कंक्लूड कर रहे होते हो कि हाँ इस रिपोर्ट के बेसिस पे, इस डेटा के हिसाब से हम ये कंक्लूड करते हैं। हाँ, आपको क्लाइंट ने पूछा कौन से बेसिस में आप ये कंक्लूड कर रहे हो, ये रिपोर्ट कहाँ से जनरेट हुआ, यस, then we will go for report analysis of that sales or whatsoever. Is it तो clear now? सर लाइक पावर बीआई में अपन रिपोर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, रिपोर्ट भी करते हैं ना, रिपोर्ट को ही डैशबोर्ड में कन्वर्ट करते हैं। ओके ओके, सो यहाँ पे क्या, अच्छा एक और चीज है ना, आपको क्वेश्चन आया होगा माइट बी, कि पावर बीआई सर्विस और पावर बीआई डेस्कटॉप, ओके, तो इन दोनों के रिलेशन में, जब आपके पास में पावर बीआई डेस्कटॉप है, पीबीआई डेस्कटॉप है आपके पास में, तो हमें पावर बीआई सर्विस में क्यों जाना, पावर बीआई
सर्विस में क्यों जाना, या फिर वहां से हमें पावर बीआई सर्विस में क्यों शिफ्ट करना पड़ता है। ओके, उसके सिवा काम नहीं होता है, इट हैज टू बी देयर। अच्छा, उसके सिवा काम नहीं होता है मतलब कहने का मतलब ये है कि डैशबोर्ड आपका क्रिएट ही नहीं होता है। डैशबोर्ड इज नॉट पॉसिबल फॉर क्रिएटिंग बिकॉज इन पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई ने क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट्स बना सकते हो। यू कैन ओनली क्रिएट रिपोर्ट्स ओवर हियर। टू क्रिएट डैशबोर्ड यू हैव टू गो इन पावर बीआई सर्विस। ये उन्होंने कंपलसरी कर रखा है। इसका मतलब पावर बीआई डेस्कटॉप जो हम यूज करेंगे दैट विल बी फुल्ली एंड फुल्ली फॉर एनालिटिकल पर्पस। यस, ऑब्वियसली विजुअल के थ्रू करते हैं, बट दोज आर ऑल फॉर एनालिटिकल टूल्स, फॉर एनालिटिकल पर्पस। Once you have done analysis, once you have concluded what you have been given the task, फिर आपको क्या करना है, उसी विजुअल्स के बेसिस में आपको पावर बीआई सर्विस में आके वहां पे आपको क्या बनाना है, डैशबोर्ड बनाना है। डैशबोर्ड डीबी कर देता हूं, और डैशबोर्ड बनाने के बाद में आपको करना है आपके एंड यूजर को शेयर। तो पावर बीआई सर्विस में आप डैशबोर्ड तो बनाते ही बनाते हो, लेकिन आप क्या करते हो, शेयरिंग जो प्लेटफॉर्म है या फिर शेयरिंग जो मेथड है, आप उसको भी कंट्रोल करते हो। किसको भेजना है, कितना भेजना है, कब भेजना है, कैसे भेजना है, एवरीथिंग इज ऑल्सो मैनेज्ड ओवर सर्विस। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। सबको क्लियर है ना? डैशबोर्ड, टाइल्स, रिपोर्ट्स, अभी ये चीजें क्लियर है ना? देखो, पावर बीआई पे क्लिक करो, देखो ये दो ऑप्शन है। देखो, ये पावर बीआई डेस्कटॉप पे हम, और ये पावर बीआई क्वेरी में है। ओके, कहाँ पे हम, पावर बीआई क्वेरी में। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा हम क्वेरी में है कि नहीं? हाँ ठीक है, बताता हूँ, डिफरेंशिएट भी करा देता हूँ। बिकॉज at a first glance it would be difficult for people who are not consistently using this Power BI service and Power BI desktop. They might have a issue. तो पता कैसे चलता है कि हम कौन से मोड पे हैं? See at this over here you have home directly option over here. Directly home आता है, फाइल वगैरह नहीं आता है। दूसरा, आपके इसमें देखोगे तो रिबन में बहुत सारे ऑप्शन है ना, वो अलग है। ओके, जो रिबन है यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे अलग है। नाउ आप देखोगे कीप रोज, रिमूव रोज, स्प्लिट कॉलम, ग्रुप बाय, ये ऑप्शंस आपने कभी पहले वहां देखे नहीं है। मर्ज करना, अपेंड करना, है ना, ये सब चीजें क्या है, ग्रुप बाय करना, डेटा का टाइप चेंज करना, हेडर वगैरह निकालना, ये सब चीजें वहां पे नहीं था। दूसरा, ये जो क्वेरी पेन है, ये जो क्वेरी पेन जहाँ पे टेबल, ये डेटा कहाँ आता था, ये डेटा था ना पहले। टेबल कौन सा है आपका, आता था राइट साइड में। क्या आता था राइट साइड में, वहां पे डेटा करके आता था, उसके अंदर आपको मिलता था इंफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या हो गया, देखो लेफ्ट साइड में क्वेरी करके आ रहा है, तो दीज आर क्वेरीज। यहाँ पे टेबल को क्वेरीज कंसिडर किया जाता है। तो टेबल 1, टेबल 2 जितना भी होगा आपको क्वेरीज कंसिडर करके किया जाएगा। और अगेन आप जो भी स्टेप्स यहाँ पे लोगे, जैसे अभी सोर्स से आपने डेटा लिया, वो एक स्टेप हो गया। फिर आपने क्या किया, एक्सट्रैक्टेड टेबल फ्रॉम HTML, ये लिया। फिर चेंज डेटा टाइप हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, रीनेम हुआ कॉलम्स को, हाँ हमने किया। फिर आपने रिमूव कॉलम भी किया, दो, यस। तो यहाँ पे हर एक स्टेप 1 2 3 से हर एक स्टेप्स को रिकॉर्ड किया जाता है और उसे फॉलो किया जाता है। दिस पेन इज कॉल्ड क्वेरी सेटिंग, क्वेरी सेटिंग्स। ये आपको पावर बीआई डेस्कटॉप में नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या आपको डेटा मिलता है। ओके, नाउ इफ यू लुक ओवर योर डेटा, अगर आप डेटा किस में देखोगे तो देखो यहाँ पे आपको टाइटल के नीचे ना, देखो ये कॉलम क्वालिटी, दिस आर ऑल कॉलम क्वालिटीज। ओके, ये क्या है, कॉलम की क्वालिटीज बताते हैं। सो इफ आई क्लिक ओवर एनी, ऑलरेडी क्लिक है, ये व्यू में जाओ। व्यू में कहाँ पे जाओगे, होम्स के बाद में मैं व्यू में आता हूँ। सी व्यू, ये कॉलम क्वालिटी में मैं अनचेक करता हूँ, देखो हट जाएगा। कॉलम क्वालिटी चेक करो, आ जाएगा। ये क्या बताता है, दिस सेज दैट, सॉरी माय बैड, हाँ, दिस is identifying or this is highlighting the let's say quality of your column. Valid कितना है, 100% है, which should be there. Error है क्या, नहीं है। Empty है क्या, कोई नहीं है। It is good. Now this column is good for me to work on, isn't it? Though there's a problem that this is a number and this is a text which has been combined. Though the quality is okay. Okay, that means ये कॉलम ये चेक नहीं करता है कि डेटा टाइप है कि नहीं। ये कॉलम क्या चेक करता है,
क्या आपके कॉलम में सब वैलिड है क्या? हाँ वैलिड है। क्या कोई एरर है क्या? एरर तो नहीं है। एम्प्टी है क्या? नहीं है। अब आप बोलोगे ये कैसे पता चलेगा सर हमें एरर और एम्प्टी में डिफरेंस क्या है? सी व्हेन वी से एम्प्टी, एम्प्टी मींस नल वैल्यूज, इजंट इट? एरर मतलब क्या है? फॉर एरर एग्जांपल पकड़ लो कि ये टेक्स्ट डेटा है, इस टेक्स्ट डेटा पे आपने क्या किया, कुछ ऐसा इमोजी या फिर कुछ ऐसे आपने इनपुट दे रखे टेक्स्ट जो ये सिस्टम रीड नहीं कर पा रहा है। आपने देखा होगा कभी कभी हम कहीं से कोई डॉक्यूमेंट लोड करते हैं, अपलोड करते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं, तो वहां पे ना ऐसे सिंबल आता है अलग अलग, पता नहीं अलग सा एक बॉक्स बनता है कुछ, तो भी अलग ही ऐसे सिंबल आने लगते हैं। तो ऐसा कुछ एरर है क्या यहाँ पे? नहीं है, isn't it? तो उस एरर को हम कंसिडर ना, एरर इमेज में दिखा देता हूं आपको मैं। ओके, लेट मी शो यू दैट इन इमेज आल्सो। इमेज ऑफ एरर इन कॉलम इन पावर बीआई, होप से दिख जाए। देयर ये नहीं है। सर वर्ड फाइल में दिखता है वैसे ज्यादातर। हम्म। डेटा इंपोर्ट करते समय ना क्या होता है कि रीड नहीं कर पाता है, तो इश्यू होता है। I might be able to, ये देखो ऐसे एरर लिख के आता है। ओके, ये एरर ऐसे लिख के आता है। क्यों? क्योंकि इंटरप्रेट नहीं कर पाता है डेटा। ओके, डेटा क्या होता है? इंटरप्रेट नहीं हो पाता है। ओके, तो वो ऐसे एरर मार्क दे देता है। तो इस एरर को निकालने के लिए, यस, अच्छा वो दिखता कैसे? देखो, इफ यू ऑब्जर्व दैट, इफ यू सी इन पावर बीआई, मैं आपको थोड़ा जूम करता देखो। ओके, आपको थोड़ा मैं आपको कॉलम क्वालिटी रीड करने का भी तरीका बता देता हूँ। सी दिस मार्क, ये ना ग्रीन मार्क नहीं कहूंगा इसे, थोड़ा सा ब्लूइश है जो भी आपको सिस्टम में दिख रहा है। ओके, तो ये देखो ऐसे पूरा ना, इसे पूरा थोड़ा ग्रीनिश टाइप में ऐसा पूरा आता है। वैलिड कलर जो है ना उसको फॉलो कर रहा है, विच इज गुड, यही चाहिए हमें। अच्छा, अगर नहीं करेगा तो क्या होगा? है हमारे पास इसका एग्जांपल है ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट कॉलम में देखो, आपको याद होगा ब्लैंक पैलेट से, देखो यहाँ पे एवरीवेयर यू हैव दिस फुल ग्रीन मार्क, लेट से जो भी है वैलिड का जो कलर है वो फॉलो कर रहा है। बट हियर एम्प्टी इज 2%। हियर यू कैन सी स्मॉल पोर्शन ऑफ ग्रे इज इन्वॉल्व। ओके, अगर ये एरर होता तो क्या होता? यस, एरर दिखाने का तरीका पावर बीआई का थोड़ा अलग है, वो आपको मैं इमेज में यहाँ पे दिखा देता हूँ अगेन, क्योंकि कभी अगर फ्यूचर में आए तो यू शुड बी एबल टू इंटरप्रेट दैट आल्सो। वो कहाँ गया? यहाँ पे, हाँ। ये ऐसे, यहाँ पे कॉलम क्वालिटी नहीं बताया है, बट यू कैन सी, है ना? देखो ये रेड मार्क है और ये इस तरह से ऐसे, मतलब जो बर्थ डेट दिया है ना, जो डेट कॉलम होना चाहिए वो फॉलो नहीं हो रहा है, वो एक इशू है। यहाँ पे देखो, ये भी यहाँ पे भी ग्रे मार्क है थोड़ा सा। ओके, इस तरह से देखो, ये एरर है, कितने? 7 एरर है। ओके, और क्या है? काउंट, ये डिटेल्स ऐसे, ये कौन से इस कॉलम का? अच्छा, ये भी आपको मिलता है, ये भी बताऊंगा मैं, स्टैटिक्स कैसे मिलता है वहां पे वो भी बताऊंगा। यू कैन हैव दैट आल्सो। पहले आपको थोड़ा और एरर बता दूं। हाँ, एरर होगा तो देखो ऐसे रेड कलर में आता है, ये देखो ऐसे। ओके, और ऐसे ऐसे से ग्रीन मार्क को ऐसे ग्रे के साथ मिक्स हो जाता है वो। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एरर के आपको व्यूज दिखेंगे एट ऑन द टॉप ऑफ योर विजुअल्स। यहाँ पे तो नहीं है, आई होप कि उतने, हाँ ठीक है, उतने ही वैल्यू, कुछ अलग तो नहीं। ओके, सो इट सीम्स लाइक दैट। अब मैं आता हूँ वापस अपने कॉल पे, यहाँ पे। ओके, नाउ अब ये डेटा है। अब यहाँ पे जो एम्प्टी है, देखो ये है ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कहीं पे, ये देखो ये नल वैल्यू है यहाँ पे ये नल वैल्यू है। एक ऐसे होंगे, दो, चार, समवॉट। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चले कि नल वैल्यूज कौन से कॉलम में है कि नहीं? क्या ऐसे कुछ हमारे पास ऑप्शन है ना? इसी व्यू में रहिए, यहाँ पे देखो ये ऑप्शंस आपके पास में। ओके, ये ऑप्शंस। ओके, नाउ सी कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन। इफ यू क्लिक ऑन दैट कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, यू विल सी दिस ग्राफ ऑन द टॉप। योर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है आपको याद होगा, स्क्यूनेस, है ना? उस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी बेस। If you click on column profile, you will see this. Selected this column, you will see this column profile. जब आपको याद होगा स्टैटिक्स मैंने बताया था, मैं दिखाऊंगा कहाँ से आता है। That is from column profile. It simply says that you have total number of two. Sorry, you have total records of
250 error, there are 0. Empty, yes, you have 5 empty records. There are 5 empty records. Distincts are 9, unique are 1, empty strings are 0, approved is minimum and R is maximum. मिनिमम नॉर्मली क्या होता है, देखो मिनिमम मैक्सिमम मतलब वैल्यू होगा तो ही दिखाता है ना, बट यहाँ पे क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखोगे तो ए पहले आता है और आर सबसे लास्ट में आता है. कंसिडरिंग द फर्स्ट अल्फाबेट हियर एंड हियर, यू कैन सी दिस ए इज योर मिनिमम, max is the R. Okay, that is logic over here. So it does apply on both your numerical data also and your categorical data also. Now let's move towards any numerical way. Let's say ratings पे आते हैं. You can see over here 250 counts obviously same रहना चाहिए, error कोई नहीं है, empty भी नहीं है, तो null values नहीं मिलेंगे यहाँ पे. Distincts are 13, unique are 2. Okay, NaN no, not a number. Okay, ऐसे कोई भी नहीं है. 0 0 0 करके कोई भी वैल्यू नहीं है. मिनिमम इज 8, मैक्सिमम इज 9.3. मतलब क्या है, 8 आपका वैल्यू है. रेटिंग्स जो स्टार्ट हो रहे हैं, रेटिंग्स का रेटिंग कहां से, मिनिमम रेट है 8 और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, दैट इज गोइंग फॉर 9.3, नॉट 9.4. 9.3 इज अ मैक्सिमम रेटिंग व्हिच इज बीन गिवन. इसका मतलब क्या है, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 एंड सो ऑन सो फोर्थ, 9.2, 9.3, ऐसे इस तरह से आपके अलग अलग आपके रेटिंग्स हैं. ओके, उसमें क्या पता चलता है आपको. अब मैं ये तो नहीं कहता कि 8.1 है, 8.2 डेटा में है, इज एन assumption what I'm saying. So if you look over here that there are 13 distinct मतलब क्या है, ऐसे रेटिंग जो है कितने टोटल, ऐसे 13 रेटिंग्स है, अलग अलग रेट्स है ना, जो रेट है 8.0 ऐसे 13 अलग रेट्स है, जिसमें कि यूनिक 2 है. यूनिक 2 है मतलब क्या है, हो सकता है कि शायद कोई मूवी हो जिसको 8.4, आपके पूरे डेटा में 8.4 या फिर कोई भी एक ऐसा रेटिंग होगा जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार आया है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ना यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से यहाँ देखो क्या, हियर यू कैन सी दैट 8.2, 8.2 एंड सो फोर्थ. आप देखोगे कि 9.3 एंड 9.2 ये जो दो रेटिंग है, ये सिर्फ एक एक ही बार यूज हुए, अदरवाइज बाकी सब कितने बार 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 रिपीट हुए. सो 2 ratings are unique because those are only used for one and one once only, whereas others are used more than one. Is it clear? यस सर. ये समझ में आया, क्लियर है सबको? एक को तो ठीक है, उनको समझ में आएगा, बाकियों को क्लियर है ना? यस सर. Yes, sir. यस सर. यस सर. ओके, now उसके नीचे देखो, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा वी हैव एवरेज रेटिंग्स. मतलब कोई भी अगर आपको मूवी इसके अंदर ढूंढना है या फिर आपको अगर आपको देखना होगा, एवरेज रेटिंग आपको 8.3 तक मिल ही जाएगा, विच इज गुड. एनी मूवी विच इज वर्थ ऑफ दिस रेटिंग शुड बी व्यूड, इजंट इट, शुड बी वॉच्ड, दैट इज गुड. अगेन स्टैंडर्ड डिविएशन में आपको वैल्यू मिलता है, तो इस तरह से क्या है, थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल आपको हेल्प यहाँ पे मिल जाता है. इफ देयर इज अ नंबर, अगेन इफ यू गो ओवर कैटेगोरिकल डेटा, यू विल हैव सम डिफरेंट, बिकॉज अगेन वहां पे क्या आपको एवरेज वगैरह वैल्यू नहीं मिलेगा, बट स्टैंडर्ड डिविएशन छोड़ के, बट बाकी का चीज यहाँ पे आपको क्लियरली मिल जाएगा. इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. आपको Yes, sir. याद होगा, देखो जब हमने फ्रीक्वेंसी है ना डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, अब देखो यहाँ पे ये मैं इस तरह से इसे ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से, ओके, ड्रॉ इस तरह से, और मैं यहीं पे इस डेटा को करता हूँ. सही, क्या डिफरेंस है दोनों में, ये वाले कॉलम में और ये वाले कॉलम में क्या डिफरेंस है? हम्म, एक का टेल जो कांस्टेंट है और एक का लेफ्ट साइड में ज्यादा जा रहा है, लेफ्ट साइड में यानी एक अप ज्यादा हो रहा है ना, मतलब डाउन इधर जा रहा है, वो लेफ्ट राइट पॉजिटिव नेगेटिव. तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिवली स्क्वेड. नेगेटिव स्क्यू है, ओके, ठीक है. और ये
भूल गए सब। सर एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक नॉर्मलाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, एक यूनिफॉर्म है, एक नॉर्मलाइज्ड है। कौन सा यूनिफॉर्म है, कौन सा नॉर्मलाइज्ड है? सर टाइटल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओके, और कैटेगरी नॉर्मलाइज डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मलाइज्ड। यस सर, बेल कर्व फॉर्म कर रहा है ना सर। ओके, सो ये देखोगे तो ये तो बेल कर्व नहीं हो रहा है यहाँ पे। नॉर्मल में तो सभी बेल कर्व नहीं सभी है ना, नॉर्मल भी देखो ऐसे ही होता है ना, बेल कर्व तो होता है ना नॉर्मल में। यूनिफॉर्म से सब में सेम डेटा आ रहा है लगभग। हाँ, आप मतलब इससे कंसिडर कर रहे हो, ओके यस। फाइन, ठीक है। और उसके अलावा ओके देखो, ये जो स्कीवनेस है ना, ये पॉजिटिव स्कीवनेस है। ओके, इट्स नॉट नेगेटिव, इट्स पॉजिटिव, इट इज राइट साइड, इट इज नॉट ऑन लेफ्ट साइड। ओके, ये जो वैल्यू आपको दिखता है यहाँ पे देखो, इट इज ऑन राइट साइड। ओके, ये पॉजिटिव स्कीवनेस है, इसे नेगेटिव नहीं है। एंड अगेन इसमें आपको ये पता चलता है कि इफ यू सी ओवर दिस पीक, okay, it's following positive kurtosis, and here you can see it's a negative kurtosis. Okay, and here you will see that there is no tail. Basically इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू रहेगा उतना कम से कम आपका यहाँ पे टेल रहेगा, which simply means that in this value, यहाँ पे क्या है, ये किसके टाइटल मतलब सीरियल नंबर से 1 2 3 like this, none of a value, none of a single value, let's say none of any value has any relationship with its second value or any other value in this column. कहीं भी रिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। इस फर्स्ट सेल के रेफरेंस को दूसरे किसी भी सेल में, किसी भी नीचे रिकॉर्ड में किसी से भी किसी का कोई रिलेशन नहीं है। दैट्स व्हाई देयर इज नो कोलिनियरिटी एंड देयर इज नथिंग इन दिस वैल्यू दैट इज बीन, लेट्स से, अट्रैक्टेड और बीन गवर्निंग टुवर्ड्स मीन। कोई मीन के पास नहीं जाना चाहता, सब इंडिविजुअल अपने अपने हिसाब से। ओके, दैट्स व्हाई देयर इज नो आउटलायर। अगेन उनका जो पूरा का पूरा डेटा जो ऊपर का जो है वो डोम, इट्स फुल्ली लेट्स से डोम शेप में, वो जो कोई पीक नहीं है, देयर इज नो पीक इन दैट। ओके, नाउ इफ यू लुक ओवर हियर, दिस यू विल सी दैट देयर इज जस्ट डोम ओवर हियर। ओके, अब यहाँ पे क्यों ऐसा डोम है? अगेन यहाँ पे आप देखोगे कि तो जितने भी मूवीज है, आर रेटिंग है, जो भी रेटिंग है उसके हिसाब से बना है ना, तो देखो कि आर सबसे ज्यादा है। ओके, सो एवरी रिकॉर्ड और लेट्स से एवरी वैल्यू ओवर हियर, ये रेटिंग कैसे, अगेन आर वगैरह जो रिलेटेड है आपकी रेटिंग्स है, तो जितने भी रेटिंग्स वाले हैं मूवी, सबसे ज्यादा जो रेटिंग है वहां पे वो आर से रिलेटेड है। सो जितने भी रेटिंग वाले ज्यादा मूवीज हैं, आपको जो आर है या फिर जो भी वैल्यू है उसके पास में मूवीज जा रहे हैं, सबके सब ज्यादा। अगेन कभी भी देखना मूवी को रेटिंग जब करते हैं, इफ सेइंग दैट 8 से अगर आप मैं 8 नीचे लिखता हूँ, 8 से अगर हम ऊपर ऊपर जाएंगे, जो कि लेट से 9.3 हमारा यहाँ पे ना, हाँ अगेन आप हमेशा देखोगे, भले मैंने मिनिमम 8 अगर स्टेप रखा है कि मिनिमम मूवी का रैंकिंग 8 होना चाहिए एंड देन 9 पॉइंट जो भी जाए आगे, there are majority of movies that will have this ranking, and there will be very few movies which will have this ranking. That's why you will always have a graph like this, always. Isn't it right or wrong? Yes, sir. Okay, तो ये आपको यहाँ पे दर्शा रहा है ये with this skewness and kurtosis. Okay, so remember that whatever we have studied as a data pre-processing with the first, second, third business and fourth business moment, it is useful. It is never a waste. Okay, वो कहीं पे वेस्ट नहीं जाता है, आपको कहीं पे भी निगलेक्ट नहीं होगा। It will be available everywhere. कहीं ना कहीं भी आप देखोगे तो उसे यूज करना आना चाहिए। ओके, सो दिस इज possibly this is visible for us only when you will say column profile, sorry, column distribution on. If you switch off the column distribution, you will not see that. Then you have column profile and column quality. Okay, now what do you mean by monospace and show white spaces? See, white spaces and monospaces में आप जब क्लिक करते हो देखो थोड़ा सा आपको ना चेंज मिलेगा। सॉरी, ये नहीं मोनोस्पेस, देखो ये ना, ये
उसके फॉन्ट में. This font is specifically used, this font, changing this into this font is specifically used where this helps you to identify कि भाई उस फॉन्ट के बेसिस में मैं देख सकता हूँ इजीली कि भाई कहीं पे भी एक्स्ट्रा स्पेसेस यूज हुआ है क्या. ओके वो हेल्प करने के लिए यूज किया जाता है उसको. सो इफ यू विल सी दैट यस आपको कहीं पे भी दिखेगा तो एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐसे दिखेंगे बिकॉज ऑलरेडी यू हैव दिस ऑप्शन. ऑलरेडी क्या होता है दोनों के बीच में अच्छा खासा स्पेस होता है और आप यहाँ पे आइडेंटिफाई आराम से कर पाओ विजुअली. ओके इसलिए वहां पे ये रखा है ऑप्शन. यहाँ पे शो व्हाइट स्पेसेस देखोगे तो व्हाइट स्पेस हमारे इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है. सो वी डोंट हैव दैट. ओके व्हाइट स्पेस मतलब स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस, नथिंग अदर देन दैट. ओके अब ये सब देखो सब चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी है इजंट इट. अब हम क्या करेंगे ट्रांसफॉर्म पे भी आ सकते हो, होम पे भी आ सकते हो, आपको जहां लगता है उस ऑप्शंस में आ सकते हो. ना हमारा फर्स्ट टास्क है कि मुझे ये जो टाइटल कॉलम है ना इसको स्प्लिट करना है. स्प्लिट कैसे करना है, ये जो सीरियल नंबर है और जो उसके टाइटल्स है उसको मुझे स्प्लिट करना है. स्प्लिट करना है मतलब अलग अलग करना है. सो इन होम यू हैव ऑप्शन कॉल्ड स्प्लिट. इन होम यू हैव ऑप्शन कॉल्ड स्प्लिट. अब स्प्लिट में देखो इतने सारे ऑप्शन है, बाय डेलिमीटर, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, बाय पोजीशन, बाय दोज एंड सो ऑन सो फोर्थ. हर एक को यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है. ओके इट सिंपली मींस जो लिखा है आपको समझ में आता है, बाय लोअर केस जो भी अपर केस है. ओके तो मैं आपको क्या करता हूँ डेलिमीटर के बारे में पहले बताता हूँ. ओके इफ यू क्लिक ऑन दिस डेलिमीटर एक विंडो ओपन होगा. स्प्लिट कॉलम बाय डेलिमीटर. स्प्लिट कॉलम बाय डेलिमीटर मतलब क्या, सी यू कैन सी ओवर हियर दिस इज योर डेटा. In here you have first one point, isn't it? One dot title. So here my full stop, you can see a small dot over here. That full stop will act as a delimiter, a special character or let's say finder. Based on that, wherever I find that full stop, from there left से लेके right में जब मैं move करूंगा, wherever I find full stop, तो जितना भी टेक्स्ट लेफ्ट साइड में होगा और जितना भी फुल स्टॉप के बाद में वैल्यू होगा मैं उसे क्या करूंगा से ब्रेक करूंगा. सो दैट फुल स्टॉप इज अ कैरेक्टर व्हिच इज एक्टिंग एज अ डेलिमीटर सेपरेटर फॉर सेपरेटिंग माय फर्स्ट एंड सेकंड इनपुट. आई हैव दिस ऑप्शन. I have other also. I have other options also. I'll get back to this also. If you look over here split, you have this number of characters, number by positions also. But when you say this option, if I say number of characters, it will be difficult because one सिंगल वैल्यू के लिए सिंगल कैरेक्टर है. जैसे वो डबल हो जाएगा 20 10 के बाद में तो डबल कैरेक्टर हो जाएगा. isn't it? अब 20 के बाद में मैं करूंगा तो देखो 1 के पहले अगर मैं ये अप्लाई करता हूँ 1 कैरेक्टर तो यहाँ पे 2 2 3 4 ऐसे ऐसे आने लगे. 2 सॉरी नो 2 3 नहीं, हाँ 21 है तो 0 ऐसे, ये 1 ये 2 मतलब क्या होगा ये ऐसे 2 2 2 2 आता रहेगा और 1 0 यहाँ से बढ़ता रहेगा, अलग हो जाएगा. मैं अगर 2 कैरेक्टर करूं तो क्या हो स्टार्टिंग में 1 और पॉइंट दोनों को लिया जाएगा ऐसे 1 2 3. लेकिन फिर क्या होगा आगे 10 के बाद में फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा. isn't it? 9 पॉइंट तक ही फिर क्या होगा 10 11 ऐसे करके आएगा. सो एवरी टाइम इट मे गेट डिफिकल्ट, इट वुड नॉट बी अ प्रॉपर आउटपुट. तो ऐसे केस में क्या है नंबर ऑफ पोजीशन से नहीं कर सकते बिकॉज पोजीशन मींस फ्रॉम लेफ्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और पोजीशन कोई भी आप दोगे तो वो एक्सट्रैक्ट करेगा विच इज नॉट अवर रिक्वायरमेंट. isn't it? See, if I click over here split, not group by, if I click over here split, if I say by positions, ये आता ऑप्शन देखो, specify the position at which a split the text. Let's say मैं करता हूँ फर्स्ट पोजीशन पे, 1 है ना फर्स्ट पोजीशन पे. अब एडवांस ऑप्शन में देखो कॉलम वाइज और रो वाइज. अरे भाई कॉलम वाइज ही चाहिए, रो वाइज नहीं चाहिए. ओके सो कॉलम वाइज दो ही ऑप्शन होते हैं. इफ आई से ओके देखो डेटा हो गया यहाँ पे, ये जितने भी डिटेल्स हैं देखो स्प्लिट हो गया. टाइटल 1 देखो स्प्लिट हो गया, देखो है ना चले गया वो. प्रॉब्लम क्या हुआ देखो अभी 10 पॉइंट था ना तो क्या हो गया 1 चले गया 0 पॉइंट रह गया. 11 था पॉइंट था 1 चले गया 1 पॉइंट. तो ये आप देख सकते हो ऐसे इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है. ये प्रॉपर हमारा आउटपुट नहीं है. एंड अगेन इफ यू सी एवरी स्टेप दैट वी आर इन्वॉल्विंग इज रिकॉर्डेड ओवर हियर. देखो पहले स्प्लिट किया फिर चेंज टाइप किया. चेंज मतलब क्या करना है देखो फॉर एग्जांपल मैं इस टाइटल को स्प्लिट करता हूं तो स्प्लिट करने में क्या होगा 1 एक कॉलम बनेगा स्प्लिट करने के बाद में सेपरेट
और टाइटल का एक कॉलम बनेगा द करके जो भी है ना। तो ये 2 कॉलम बन जाएंगे। वन स्प्लिटेड, मुझे इस कॉलम का डेटा टाइप तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, और इसका भी डिफाइन करना पड़ेगा। सो ये भी है स्टेप, चेंज डेटा टाइप एंड स्प्लिट। सो ये दोनों स्टेप्स वहां पे इन्वॉल्व होते हैं, दैट्स व्हाई बोथ ऑफ देम आर बीन रिकॉर्डेड। ओके, नाउ इफ आई डोंट वांट, सी कंट्रोल जेड करने से कुछ फायदा नहीं होता यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कंट्रोल जेड नहीं चलता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कैंसिल दैट स्टेप, इसे कैंसिल करो और स्प्लिट को भी कैंसिल करो, तो वापस डेटा आएगा। अदरवाइज कंट्रोल जेड करते बैठोगे, यहाँ पे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। वो कहाँ पे अवेलेबल है, आप जाओगे देखो यहाँ पे अवेलेबल है वो पावर बीआई डेस्कटॉप में, अंडू के लिए, रीडू अंडू के लिए। यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यू आर इन पावर क्वेरी एडिटर मोड। ओके, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग कंट्रोल जेड ओवर हियर। Okay, so it is mentioned over here, you can choose or select or unselect, or let's say save that, or you can undo that also over here from, okay, क्रॉस कर सकते हो। अब क्या करते हैं, फिर से स्प्लिट पे आते हैं। अब हम करते हैं बाय डेलिमीटर। बाय डेलिमीटर यहाँ पे किया। नाउ विद डेलिमीटर ओवर हियर मैं क्या करता हूँ, फुल स्टॉप को उसने अपने आप खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर दिया, मैं तो कुछ बताया भी नहीं उसे। ओके, कैन सी दिस। ओके, देखो फुल स्टॉप उसने सिलेक्ट कर लिया है, वो खुद ब खुद उसे कर रहा है। और क्या है, कस्टम। अच्छा, इतने करने के बाद मैं आप ऑप्शन यहाँ पे देखो, स्प्लिट करते समय फुल स्टॉप कहाँ फाइंड करूं, लेफ्ट मोस्ट डेलिमीटर से या राइट साइड। राइट से करोगे तो क्या होगा, आपका सिस्टम। ओके, देखो व्हेन वी से लेफ्ट ना, लेफ्ट मतलब क्या है, आप क्या ऐसे लेफ्ट साइड से रीड करोगे, तो यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे ये मैं अगर उल्टा कर दूं, यहाँ पे ये सेलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, राइट साइड से देखेगा। तो राइट साइड से वो देखेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे पता नहीं कहाँ पे है, बट एनी हाउ लेट से यहाँ पे अगर फुल स्टॉप होता तो क्या होगा, यहां से अलग करेगा वो राइट साइड से। या फिर ईच अकरेंस मतलब क्या है, जहां जहां पे भी ऐसे डॉट्स होंगे, जहां जहां पे भी ऐसे डॉट होंगे, वो हर एक पार्ट को, इसको सेपरेट, इसको सेपरेट, इसको सेपरेट, ऐसे हर एक पार्ट को सेपरेट करेगा फॉर ईच अकरेंस। हमें को अब आपको चूज करना है कि इसमें से कौन सा बेस्ट है हमारे लिए। फॉर नाउ वी विल थिंक दिस इज द बेस्ट वन बिकॉज आई नीड टू जस्ट सेपरेट दिस। सो आई चूज लेफ्ट मोस्ट डेलिमीटर। ओके, लाइक दैट। अगेन कोट्स कैरेक्टर, ये जो कैरेक्टर कोट्स में करने की जरूरत है क्या, नहीं ना, अभी जरूरत नहीं है, सो लीव इट, नो इश्यू। ओके, हाँ स्प्लिट यूजिंग स्पेशल, नहीं नहीं जरूरी नहीं है। ओके, इसे कर दो, अभी ये एडवांस का है, नन कर दो, बाकी कुछ मत करना, इसे कर दो। ओके, नाउ यू कैन सी दैट you have added one column this and one column with this. We have 2 columns generated now. You can see numbers in this column and titles on this column. So 1 2 3 4 5 6 so and so and so and so forth. सब आपकी वैल्यूज यहाँ पे आ चुके हैं। That is what we were needed of. Okay, तो छोटा कर देते, इतनी बड़ी की जरूरत नहीं है वैसे इसको, है ना ये। ओके, ये हो गया। अब हमें फिर से क्या करना है, देखो अब देखो, जैसे उसने क्या किया, इस कॉलम को टाइटल दे दिया, आपका 1 2 3 जो वैल्यू है राइट साइड चले गया, और जो टाइटल 2 था कॉलम, उसका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड चले गया। सेम एक्सेल में जैसा होता है, नंबर को राइट साइड और एक्सेल को कैटेगरी को लेफ्ट साइड कर देता है, दैट्स द सेम प्रोसेस। ओके, दोनों आपको मिल गया। तो क्या है इसका मतलब, इट इज नॉट ओनली चेंज splitting the data but also changing data type, because this data type has to be recognized or considered as a number, and this data type has to be considered as a text. Okay, for that again आपको कंफर्म करना है क्या सही में हुआ है। yes, we can see that also, we can verify that also. okay, तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूं, इस टाइटल के। ओके, पहले मैं इसको रीनेम कर देता हूं, ये टाइटल 1 नहीं है, ये टाइटल 2 नहीं है, ये टाइटल है और ये सीरियल नंबर है। ओके, सो SRNO इतना करके छोड़ देता हूं। अब सीरियल नंबर का डेटा टाइप हमें चेक करना है, कहां पे चेक करोगे, फर्स्ट सेलेक्ट द कॉलम, once selected, see over here, data type, this is whole number, fine, as per our requirement it satisfies this. Now I'll select the other one, yes, it is a text here, string. Okay, that is fine. तो यस हमारे पास में, हाँ कल जाके अगर आपको चेंज करना रहा, इस सीरियल नंबर को मुझे चेंज करना है, यहां से मुझे इसे करना है टेक्स्ट में, कर दो, नो प्रॉब्लम। सिंस इट्स नॉमिनल डेटा, मैं इसे टेक्स्ट में करूँ, नंबर में लिखूं, कैसे भी करूँ, बाकी जो एडवांटेज आने वाला नहीं है ना, काउंट ही पता चलेगा, बाकी का कुछ मुझे उसमें एडवांटेज नहीं है। सो आई कैन चेंज एज पर रिक्वायरमेंट, तो मैंने करके दिखाया आपको, वी कैन चेंज दैट डेटा टाइप ऑल्सो। अगेन एज एन हाउ यू चेंज, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड।
रीनेम किया, बाद में फिर से चेंज किया डेटा टाइप, ये चेंज डेटा टाइप है। ओके, जो हमने किया था वो वाला। ओके अब दूसरा पार्ट है अपना ये वाला, है ना। इस रिव्यू कॉलम में हमें क्या करना है, पैरेंथेसिस को निकालना है। ओके, सो अगेन वी हैव दिस ऑप्शन, स्प्लिट करने के बाद में स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट करने से लेकिन होगा क्या, व्हेन यू स्प्लिट द दिस डेटा, क्या होगा, ए सेपरेट ऐसे होगा, एक ब्रैकेट पैरेंथेसिस के लिए बनेगा, फिर 3m ऐसे बनेंगे, कि स्प्लिट होगा ना ऐसे। ओके, लाइक दैट। अब इसमें क्या आप डेलीमीटर यूज कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वाइल स्प्लिटिंग इफ आई से डेलीमीटर, हाँ एक ऑप्शन है, देखो इस डेलीमीटर को हम क्या करते हैं, उसी से दे देते हैं, ब्रैकेट से। ओके, अब इफ आई से ओके, देखो ये हो गया, लेकिन ब्लैंक तो बन गया। अब देखो ब्लैंक का डेटा आप देखोगे, जूम का आ गया, ये देखो, ये देखो पूरा एरर है ना, देखो ये पूरा क्या है, ग्रे मार्क आ जाता है। ओके, ये पूरा एरर नहीं कहूंगा, बट इट इज नॉट वैलिड। ओके, इस तरह से आपको दिखे, जीरो वैलिड, जीरो एरर, 2K250 एम्प्टी। ओके, सो लाइक दैट। हाँ अगेन इस पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे रखता हूँ सिर्फ, नॉट डूइंग एनीथिंग बेसिकली। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, बिकॉज दैट डजंट मेक एनी सेंस, सो आई विल रिमूव इट। ओके, लाइक दैट। मगर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे स्टेप्स बढ़ रहे हैं ना, पहले स्प्लिट कर रहा हूं मैं, फिर डेटा टाइप चेंज हो रहा है, फिर स्प्लिट हो रहा है अननेसेसरली। क्या हो रहा है, 3 स्टेप्स बढ़ रहे हैं यहाँ पे, 3 स्टेप्स। शुड आई गो फॉर दैट? नो, इट्स नॉट वाइज डिसीजन, आई गेट बैक। मत करो ऐसा। दूसरा ऑप्शन क्या है, स्प्लिट पे आइए, बाय पोजीशन अगेन, आप स्प्लिट में कोई भी ऑप्शन करो। ओके, बाय पोजीशन भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही, बाय पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, लेट्स से ओके। ओके, नाउ ये हो गया। अब अगर आप बोलोगे अभी मैं और एक पोजीशन से करना चाहूंगा, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, देखो दिस पोजीशन मींस फ्रॉम लेफ्ट राइट जो भी देना है ना। ओके, सी इफ यू लुक ओवर हियर, स्प्लिट बाय पोजीशंस, देखो एडवांस में क्या है आपके पास में, रो और कॉलम ही है, लेफ्ट राइट है क्या, नहीं है। इट नाउ इससे प्रॉब्लम क्या है, देखो हम्म, अब आप बोलोगे मुझे थर्ड पोजीशन में जाना है, तो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन के लिए आप देखोगे कि जहां पे लिखा है 3m लाइक दिस, थर्ड ये ठीक है, लेकिन हर बार क्या काम होगा, मैच होगा क्या, नहीं होगा। जहां पे 1.4m ऐसा लिखा है, ये तो इसको कर देगा पोजीशन वाइज। अगेन ऐसे तो नहीं चाहिए हमें, सो दैट विल आल्सो नॉट वर्क। दिस ओनली वर्क्स व्हेन यू हैव डेफिनेट और लेट्स से डिफाइंड फॉर्मेट, अगर सेम रहेगा तो ही बेटर होता है। ओके, सो आई विल रिमूव दैट आल्सो, सेट दैट। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखो, इतने सारे। ओके, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं काम करेगा अगेन, क्योंकि कैरेक्टर अलग अलग है। ओके, सो इट्स बेटर कि हम क्या करेंगे, रिप्लेस वैल्यू भी कर सकते हैं। रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करते हैं। आई वॉन्ट टू रिप्लेस, व्हाट आई वांट टू रिप्लेस, आई वांट टू रिप्लेस दिस ओपनिंग पैरेंथेसिस टू व्हाट, टू नथिंग। ओके कर दो, देखो हो गया। अब बोले कि क्या हम दोनों एक साथ कर सकते हैं क्या, सी दोनों करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, चेंज डेटा टाइप, ठीक है, रिप्लेस वैल्यू। देखो आप दोनों कैसे दोगे, आप क्या सोचोगे अभी, हाँ ये कैसे करते हैं, फिर कॉमा करते हैं, फिर ये कैसे करते हैं, सी यू आर फाइंडिंग दिस, आप कॉमा ये सब चीज दोगे, ये पैटर्न दे रहे हो उसे। ओके, एडवांस में भी जाके चेक करोगे तो ऐसा मैच नहीं होगा। ओके, सी इफ यू लुक ओवर हियर, रिप्लेस यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर्स, इफ आई गिव दिस, लेट्स से अब क्या करते हैं, मैं ऐसा कर देता हूँ। ओके, एंड रिप्लेस विद नथिंग, कुछ नहीं करना मुझे। ओके, अब मैं क्या करता हूँ अभी, मैच एंटायर सेल कंटेंट, स्पेशल कैरेक्टर्स, लेट्स मैच, ओके कर देते हैं। सही हुआ, नहीं हुआ कुछ भी। अब क्या करते हैं, इसी को एडिट करते हैं, थोड़ा चेक करते हैं, है ना। आई विल एडिट, एडिट के लिए ऑप्शन होता है, देखो उसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को या उस प्रोसेस को एडिट करना तो कर सकते हो, वी हैव दिस ऑप्शन। ये जो गियर का सिंबल है, इस पे क्लिक करो, ऑप्शन ओपन हो जाता है, वो आप कर सकते हो। ओके, फिर हम क्या करते हैं, देखो लेट्स से रिप्लेस स्पेशल कैरेक्टर्स, इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स, कैरेज रिटर्न लाइन फीड कैरेक्टर, ऐसे कुछ भी नहीं है। नहीं, वो भी नहीं हो रहा है। सो
इट विल ओनली टेक वन एट अ टाइम। हाँ, इसको कर दो क्या हो जाएगा। अगेन फिर से एक स्टेप करना पड़ेगा हमें, है ना। स्प्लिट, so not split, replace this time this okay okay। तो इस तरह से अगेन टेक्स्ट ही है, डेटा टाइप तो कुछ चेंज नहीं हुआ है because it was already text, now is also text because there is involvement of m, k and those। okay, so it will be like that, leave it, no issue, छोड़ देंगे उसे। ईयर को हम डेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लगा कि मैं ईयर को डेट में कन्वर्ट कर देता हूं, उससे डेट आ जाएगा, सी द थिंग इज इट इज ओनली हैविंग ईयर 1994, इतना ही है, सिर्फ ईयर, बाकी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। आप क्या करोगे इससे, कैसे बता कि कौन से डेट में। इट इज इनसफिशियंट, डोंट ट्राई टू डू दैट। इफ यू एनी हाउ, अगर आपको लगता है मुझे करना चाहिए, लेट्स से कर भी देते हैं, तो क्या होता है देखो, इफ आई क्लिक ऑन दिस कॉलम वेयर इज विच दिस इज इनसफिशियंट फॉर दैट पर्टिकुलर डेट format, so let's say if I do this date, see what it has done, it has done 6/16/1905। अब आप बताओ 1905 में कौन सी ऐसी मूवी बनी थी, और क्या उस समय ठीक है मूवी था, ऐसे नहीं कि नहीं है, बहुत मिनिमल मूवी थे, और उसमें भी क्या थे कि ऐसे कलर वगैरह मूवी, या फिर जो शॉशैम रिडम्पशन के जैसा मूवी होना, इतने लोगों ने रेटिंग करना और इतना लोगों ने मूवी देखना, इट्स नॉट पॉसिबल एट दिस ईयर 1905। तो ये उस टाइम का बता रहा है डेटा, isn't it, which is which is not an convenient, or let's say which is not an acceptable। convenient तो दूर की बात है, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। so you will see that everything has changed into that। why? because आपको याद होगा एक्सेल में क्या होता है, this value that you have provided 1994, it is considering that this is day। ये इतने क्या है, डेज है, ये डेज है आपके, कहां से स्टार्ट है 1990 1900 से इतने डेज 1994 डेज का आप मुझे बता रहे हो कैलकुलेट करके कि उसका डेट मुझे चाहिए। सेइंग दैट, मैं आपको बताता हूं, देखो क्या कह रहा है वो। ओके, यहां पे देखो जीरो, ओके ये जीरो वैल्यू है नहीं, जीरो वैल्यू है। अब इसको मैं क्या करता हूं, डेट में कन्वर्ट करता हूं, शॉर्ट डेट, ये देखो 1990s आ गया। ओके, अब मैं क्या करता हूं, उसे 1994 यहां पे लिख देता हूं, 1994, इसको करता हूं डेट, ये देखो सेम वही वैल्यू यहाँ पे। मतलब क्या है, जब जीरो था तो आपका रीडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1900 में फर्स्ट डे विदाउट एनी मंथ यहाँ से काउंट स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, ये एक्चुअली मंथ है, जीरो डे करके। ओके, सो काउंट हो रहा है, वहां से आप देखोगे तो टोटल 365 366 367 400 500 ऐसे डेज काउंट करते करते जब 1994 ये टोटल आता है, इतना डेज हो जाता है कंप्लीट, तो वो इसको रिजेंबल कर रहा है, ये बता रहा है वहां पे, बट ये तो कोई हमारी वैल्यू नहीं है। सो सिंस वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर डेटा, ओके पर्टिकुलर डेटा ओवर दैट विद रिस्पांस टू दैट, डोंट चेंज दैट बिकॉज दैट विल नॉट मेक एनी सेंस, नहीं कर सकते यहाँ पे। सो मेक इट कैंसर, डोंट डू दैट। ये क्लियर है गाइस? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Yes. ओके, नाउ अभी हमें रिप्लेस करना है, नाउ वी नीड टू रिप्लेस दिस। अब इसे किसे रिप्लेस करें, जीरो वैल्यू को, ब्लैंक वैल्यू को कैसे, क्या करना चाहिए अभी रिप्लेस, किससे करना चाहिए बेसिकली? कैटेगरिकल Zero डेटा से। है तो मोड से। ओके, तो मोड से मोड सर। क्या, कौन सी वैल्यू है मोड में, कैसे पता चलेगा? कितने सारे ऑप्शन है आपके पास? हम्म? याद है आपको? कॉलम स्टैटिक्स एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, व्यू में गए थे हम, वहां पे हमने किया था ना कॉलम, यहाँ पे हमने प्रोफाइल, कॉलम प्रोफाइल सेलेक्ट किया था, देखो वहां पे को क्या पता चला था, सबसे ज्यादा जो है आर, ये मूवी का है, इजंट इट, आर का। ओके, नाउ आंसर सही है आर आपका, बट लेट्स से अगर मुझे इसे जी से करना रहा, आपका आर सही है, बट फॉर माय कंसिडरेशन व्हाट आई एम सेइंग इज दैट, लेट्स से मुझे इसे जी से करना है, कैसे करेंगे?
रिप्लेस विथ एग्जैक्टली Replace रिप्लेस पे value. आता हूँ मैं। यहाँ पे क्या करूँ? यहाँ पे क्या लिखूँ? यहाँ पे ब्लैंक्स रिप्लेस को करना जो है ब्लैंक्स तो R. ब्लैंक लिखो ऐसे। सब ब्लैंक No, को R लिखना नीचे पड़ेगा. में जहाँ रिप्लेस ओके ऐसा। ओके नहीं ब्लैंक लिख नो सर, ब्लैंक लिखना नहीं है, ब्लैंक छोड़ना है बस। ओके ब्लैंक छोड़ना है। ओके फाइन, चलो कोई बात नहीं, ब्लैंक छोड़ दो। ओके कर दो। सर ओके अब चेक करते हैं। फिर भी है देखो नल वैल्यूज। अब मैं इसी स्टेप को एडिट करता हूं। यहां पे आता हूं, यहां पे लिखता हूं नल। ओके और कहता हूं जी। अगेन प्रॉब्लम वही है, नहीं हो गया। क्लियर है? ओके नॉट रिलेटेड, हाँ ठीक है। ओके दैट इज बिन डन। अब मुझे इसमें एक और चीज अपडेट ये करनी है कि जहां जहां पे ना ये जो जी लिखा है ना, जी, ये इस तरह से जो जी लिखा है, इस जी को मुझे करना है जनरल। क्या करना है? उस जी को मुझे करना है जनरल। ये मैंने कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या हो गया देखो, जी ठीक है हो गया जनरल, बट पीजी तो था वो भी पी जनरल हो गया, PG-13 था वो भी पीजी जनरल हो गया है, और जनरल का ठीक है। अब इनको दो को कैसे हम सॉल्व करें? क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए था? इन दिस वी हैव एडवांस ऑप्शन। ओके आपको याद होगा, मैच एंटायर सेल कंटेंट और रिप्लेस यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर। नाउ वी विल बी सिलेक्टिंग दिस मैच एंटायर सेल कंटेंट। मतलब क्या है, आप सेल में जाइए, ओके, और वहां पे एंटायर सेल, पूरे सेल को चेक कीजिए, जहां पे पीजी लिखा है और आप जी को ढूंढ रहे हो, क्या ये एंटायर सेल से मैच होता है क्या? अगर होता है तो ही रिप्लेस करना है, अदरवाइज अगर पीजी होगा ऐसे कुछ कहीं लिखा होगा तो अंदर में से कोई एक जी को फाइंड आउट करके रिप्लेस नहीं करना है। ओके सो दैट हेल्प्स फॉर दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। इसको ओके करो। यस नाउ इट विल रिमेन एज इट इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, sir. लेट्स से हो गया, यहाँ पे जो चाहिए था हमने कर दिया। ओके अब मैं क्या करता हूँ, इसे कर देता हूँ सेव, क्योंकि हो गया। बाकी कुछ चीजें यहाँ पे ऐसे कुछ बाकी छुपा रहा नहीं है। लेट्स से इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद में 2 मिनट वेट करना है। ओके वो लोड हो रहा है, लोडिंग। जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है इवैल्यूएटिंग, तब तक वेट करना है। ओके वंस हो गया, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो डिटेल्स है। अगेन आप बोलोगे सर ये ऐसे कैसे हो गया, टाइटल हमने पहले लिखा था जो कुछ भी था। आप यहाँ पे देखो ऑब्जर्व करो, इसका जो डेटा टाइप का जो है, पहले नंबर्स, देन कैटेगरी CST, ठीक है। इसका इसका यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे, यहाँ का मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे तो चलो अलग दिख रहा है, बट एनी हाउ यहाँ पे आप देखो, कभी भी आपका टेबल जो अरेंज होता है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, CDRSTVY, हमेशा क्या होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही सर्च कर यहाँ पे मिलेगा। ओके अगेन यहाँ पे ये फॉलो नहीं करता है प्रॉपरली, सो इट इज वेरी ठीक है। छोटा डेटा है तो चलो इजी है, कोई फाइंड आउट करने की प्रॉब्लम नहीं है। बट बहुत सारे डेटा सेट में हमने देखा होगा कॉलम क्या होता है ना, ऐसे यहाँ से ओवरव्यू करने के लिए हमें स्क्रॉल करना पड़ता है। उस समय होता क्या है कि एग्जैक्टली कोई कॉलम को अगर कोई बोलता है ढूंढने के लिए, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे केस में क्या करना है, जो भी नाम बताया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे डेटा में सर्च करना है, उसको सेलेक्ट करोगे तो वहां पे वो सेलेक्ट करके आ जाएगा। सी इफ आई क्लिक ऑन दिस ईयर, देखो वहां पे सेलेक्ट हो जाता है। इफ आई क्लिक ऑन दिस रेटिंग, रेटिंग पे आ जाएगा। इफ आई क्लिक ऑन दिस कैटेगरी, कैटेगरी पे आ जाएगा। सो डोंट सर्च ओवर हियर लाइक दिस। ओके डोंट
लेट्स से रन योर आईज ओवर हियर एंड देयर लाइक दिस, ऐसे मत आपकी आंखों को भगाते बैठो यहाँ से, ओके, आगे पीछे मत भगाओ, डोंट, नो नीड फॉर दैट, गो ओवर हियर डायरेक्टली, सेलेक्ट दैट नेम, ये ओवर हियर अगर ये है तो इसे सेलेक्ट कर लो, आपको वहां पे अपने आप मिल जाएगा, ओके, दैट इज मोस्ट कन्वीनियंट वे, ठीक है, ओके, एनी हाउ बहुत सारे स्टेप्स हमारे बाकी है अभी भी, विल कम बैक अगेन टुमारो, विल सी यू अगेन टुमारो, ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर द प्रेजेंस, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर हाँ बोलिए ना। हेलो सर, जो डेटा में हम लोग जो भी चेंजेस कर रहे हैं ये परमानेंटली मेन डेटा में करता है या खुद का एक नया टेबल क्रिएट करके इसको कहीं और स्टोर करता है? ये आपका एक इमेज या फिर डेटा स्टोर करता है इसमें एज्योर में, ओके, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में, वहां पे करता है, ये ओरिजिनल डेटा सेट को कभी चेंज नहीं करेगा, नेवर। ओके, मतलब अगर मान लो कुछ दिन बाद या कुछ हफ्तों बाद भी अगर इसमें ऑपरेशन करना है तो ट्रांसफॉर्मेशन एज इट इज रहेगा। यस यस यस, और इसीलिए वो स्टेप्स भी फॉलो होते हैं कि अब इस फाइल में जाओगे तो आपको एज इट इज वो हर एक स्टेप को फॉलो करते ही आपको डेटा दिखेगा, ओके। ओके सर, या थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, देखना पड़ेगा, अच्छा, ओके। हॅलो अविनाश बोलो। सर, जो हा डेटा होता जसा ते अल्फाबेटिकल ऑर्डर ते फॉलो करतं. समजर बाय चान्स सर आपण ते पहिल्यानं जे दाखवत होतो ना ते टेबल 1 टेबल 2 तिथं नंबर्स आले होते, म्हणजे नंबर्सचे कॉलम 1 कॉलम 2. हा, तर त्यावेळेस तो त्या म्हणजे यानं करत होता की नंबर्सनं तो फॉलो करत होता? ए बी आता कॉलमचं नाव सगळ्यांचं सेम आहे ना, कॉलम कॉलम कॉलम, हा, त्यावेळेस कॉलम काय 1 करणार, 1 2 3 त्याला 2 फॉलो 3 करणार. हा, अच्छा. म्हणजे जर आपण ज्यावेळेस त्याच्यामध्ये ट्रान्सफर केलं तो अल्फाबेटिक ऑर्डरनं रिप्लेस झाला. येस येस, थँक्यू सर, गुड नाईट. ओके.